नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेब दे, गुर पार उतारन हार। हम वो नहीं है जो झुक जाए, हर तूफान से हम टकराए। हम वो नहीं है जो झुक जाए, हर तूफान से हम टकराए। हर सपनों को मिले मंजिले, यह अपॉर्चुनिटी इंडिया। नए रास्ते हर पल बने अपने ख्वाबों का इंडिया। We're rising high, we're rising high. Oh, 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 gonna touch the sky. Oh, 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 we're rising high, we're rising high. Oh, 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 gonna touch the sky. पंख दिलाए, उंगली से मुट्ठी बनाए। हम तो हरदम ही यारो बाजी मार जाए। नाम जब गिले ना हो, ना तेरा न मेरा हो, मैप पे रोशन बस एक नाम हमारा हो। शाइनिंग इंडिया दूर नहीं है, फ्यूचर जिसका हम वही हैं। हर सपनों को मिले मंजिले, यह फ्रेंचाइज इंडिया। नए रास्ते हर पल बने अपने ख्वाबों का इंडिया। We're rising high, we're rising high. Oh, 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 gonna touch the sky. At Franchise India Group, we believe the future belongs to the entrepreneurs and their best rewards are yet to come. Gonna touch the sky. Thank you so much, Dheeraj, my colleague, for this beautiful video which talk about the aspiration, we talk about dreams, and how Franchise India is playing role of opportunity for all potential business buyers who select their business from us. So thank you so much, every participants who have joined today for this particular special webinar. This is the 41st episode we are releasing for you guys. With this introduction, I welcome in our panel, we have Gaurav sir, who is the chairman Franchise India, and Sonia ma'am, who is the MD Franchise India Brands Limited. The particular webinar is hosted by both of them. आज का जो हमारा webinar है, आज का जो हमारा brand है, वो है गरम मटका. And we have privilege that we have Executive Director Mr. Tanveer with us to talk about his brand. तनवीर जी, आपका स्वागत है। फ्रेंचाइज इंडिया टीम आपका स्वागत करती है जैसा, और हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और आज हम आपकी जर्नी, गरम मटका की जो जर्नी है, जो बैंगलोर से आते हैं और जिनके 6 आउटलेट चल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो ओवर टू यू सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thanks a lot. Can I start? Yes, yeah, but before, if you want, we can play your video. We have beautiful video from your side. Yeah, that would be fine, so that I can reduce my. Yeah, thank you. Yeah. Just give us 2 minutes. We are playing a beautiful video of your brand, sir. Thank you. Yeah. World abundance through business. Every business
has a story. It's our story of taste, passion, and success. From this mist, our story begins. Garam Matka, a tea story. Tea is to refresh, rejuvenate, and relax. Garam Matka rewrites the story of tea. More than just a taste, tea is a habit, so it's important that the habit should be healthy. Garam Matka is to bring all kinds of tea around the world under a single roof. Garam Matka provides more than 150 varieties of tea: tandoor tea, black tea, green tea, green coffee, royal tea, international tea, bubble tea, more than 11 varieties of coffee, cold coffee, and lassi. We also have special healthy tea for kids, aged people, teenagers, women, pregnant ladies, sugar patients, etc. We use only natural ingredients, honey and milk. Garam Matka is the perfect blend of taste and health. This satisfaction is our asset. Providing more taste is our sweet liability, and this perfect blend makes business. As per recent studies, consumption of tea is increasing 4.5% to 5.5% annually. Asian countries consume more tea than coffee. Global output of green tea is foreseen to increase at an even faster rate of 7.5% annually to reach 3.6 million tons in 2027. Global demand for tea is also benefiting from a new clientele. Young urban consumers have emerged as the fastest growing segment. Customized snacks, coffee, and 25 outlets around India is the gate of a new business era of Garam Matka. Design your business with us and define your success. We hope you may join us in the journey to success. For business inquiries, 9961 243412, 94477 24312, 009656 577 8629. Email garammatkaindiapvtltd@gmail.com. Our website www.garammatka.com. Can I start? Yes, sir. Yes. Good morning to everybody. I think I can mix up the language with Hindi and English. Yes, sir. गरम मटका जो आप वीडियो से हमारे जो ब्रांड को आप पहचाने होंगे, एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम
ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब ग्लोबली एक्सपोज करना चाह रहे हैं। एक इंडियन ट्रेडिशनल जो कॉफी और टी का जो ब्रांड है उसको हम ग्लोबली इसका प्रेजेंस और इसकी मौजूदगी की कोशिश में हम लगे रहे हैं। हम लोग हर चीज बाहर से लेके आके यहाँ पे खाते हैं। स्टारबक्स, उसमें हम लोग प्राउड फील करते हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हैविंग द टीज और कॉफीज फ्रॉम स्टारबक्स। लेकिन एक ऐसा मौका हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे इंडियन ब्रांड को जो ग्लोबली इसको कनेक्टेड हो जाए और इसका जो ग्रोथ है और हर कंट्री में इसका ग्रोथ हो। इस पर्पस के साथ, इस थॉट के साथ हम सुबह उठते हैं और जो भी बात हम करते हैं इस सिलसिले पे बात करते हैं। और इस जो थॉट हो हमें हमारे दिल में जगाया है वो फ्रेंचाइजी इंडिया है। इसलिए पहले मैं फ्रेंचाइजी इंडिया को अपनी I am really grateful and indebted to Franchisee India who has instilled this thought and belief in our minds. Thanks a lot, Mr. Gaurav Maria and the team. Yes, गरम मटका जो हमने बहुत सिंपली, बहुत उसको बहुत ऑर्डिनरी लेवल पे हमने शुरू किया था। वो 4 साल पहले विदाउट एनी ब्रांड नेम वी हैव स्टार्टेड इट। ये इसलिए हमने किया था कि चाय का जो बेस चाय, हमारे पास 150 वैरायटीज ऑफ टी एंड कॉफीज है, उसमें 140 प्लस चाय है, 11 वैरायटीज कॉफीज है। ये चाय कहीं भी आप जाए, चाय अच्छा चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना 99% लोग बोलते हैं कि नहीं ये बढ़िया नहीं है, वो चाय अच्छा नहीं है। तो आदमी वो चाय पी के बोले यार इतना खूबसूरत और इतना मजेदार चाय, लजीज, लजीज भी बोलते हैं ना उर्दू में, ऐसा बोलने वाला बहुत। अब कहीं भी जाए, मैं दुबई में मेरा 14 साल रहा है, अभी मैं कुवैत में हूँ, अभी लॉकडाउन एक दिन पहले मैं आया था इधर बच गया। तो हर कंट्री में जब मैं चाइना में भी जाता हूँ और ताइवान में भी जाता हूँ और मैं अमेरिका भी जा चुका हूँ, लंदन में भी जा चुका हूँ। हमारा टीम तो बहुत इस रिसर्च में कई कंट्री में जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी इतना अच्छा चाय वो बहुत रेयरली वी हियर दैट वर्ड। तो हम स्टारबक्स में जाते हैं, कभी कोई बोलते हैं कि बहुत अच्छा कॉफी है, लेकिन चाय के मामले में बहुत कम है। तो उस सोच में हम लोग इसको शुरू किया था, लेकिन उस वक्त ब्रांड नेम का उसका कुछ सोच बिल्कुल नहीं आया था। हम लोग 4 साल पहले शुरू किया था, लेकिन जो हमारे टीम में है, जो एमडी है, जो इसका फाउंडर है, चेयरमैन है मिस्टर गिरीश, वो 25 साल का उनका तजुर्बा है और उसका एक्सपीरियंस है इसमें। और जो हमारे सीईओ है मिस्टर ब्रजेश, he has an experience of 14 years in the same field and snacks as also is tremendously, immensely talented in in cooking and in making snacks. तो इन लोग का जो एक्सपीरियंस को मिला के हमने 4 साल पहले किया था, वो कैसे हमने किया था, तो फॉर 4000 दूध 4000 लीटर दूध हमने कई महीनों से मंगवा के हम लोग खरीद करके हमने एक अलग ब्लेंडिंग करके हमने एक रेसिपी बनाया। एक दो हमारे जो सिग्नेचर टी, गरम मटका सिग्नेचर टी है, उससे हमने चालू किया था। एक चाय से हमने शुरू किया था, वो बहुत सक्सेस रहा। जहां मलप्पुरम एक पिरंदल मन्ना बोल के एक जगह है, वहां पे चालू किया था। फिर हमने 3 महीने के अंदर 25 छोटा आउटलेट हमने दे दिया। फिर वो जो प्लान है, जो मॉडल है, हमने आराम से मतलब धीरे धीरे हमने उसको छोड़ दिया। और फिर हमने ये
एक ब्रांड बनाया गरम मटका बोल के, दैट इज इन 2018 we have launched a brand name with the name of Garam Matka, and that was taken, the first master franchisee franchise was taken by a Bangalorean citizen resident. वो एक बेंगलुरु में हमारा जो पहला जो मास्टर फ्रेंचाइजी रहा और हमने दे दिया था वो 2018 at the end of 2018. वो भी बहुत अच्छी तरह से जा रहा था. बीच में फ्रेंचाइजी इंडिया लोग भी हमारे पास आए और उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार लगा, और इसको मॉडल को चेंज करने के लिए हमने इनको अप्रोच किया. तो ये जो हमारे जो यात्रा रहा है, जो सफर है, ये है कि हमने रिसर्च करके अपना ब्लेंडिंग, अभी भी हम लोग हर महीने में अपना ब्लेंडिंग हम लोग नया जो इनोवेटिव, इसको बोलते हैं, हम कंसिस्टेंटली हम लोग इनोवेट कर रहे हैं हमारे जो ब्लेंडिंग में. वो कहीं भी आपको दिखेगा नहीं. वो इंडियन, अभी इंडियन भी है और बाहर के हर तरह का, जापान का टी है और ताइवान का टी है, चाइनीज टी है और जो भी इंटरनेशनल टी है, उसको पूरा मिला के 151 वेराइटीज किया है. और इसका विजन हमने रखा है वो ये है कि टू बिकम लाइक ए स्टारबक्स बाय 2025 इन टी में स्टारबक्स के तरह इसको आगे बढ़े और ये उसका ग्रोथ ऐसा रहे, स्टारबक्स की तरह रहे. और यूएसपी जो है, इसका यूएसपी थोड़ा दिखा सकते हैं अर्चना मैडम? हेलो जी सर, वी आर डूइंग इट. या अभी बेंगलुरु में 6 यूनिट्स हैं. आप दिखाइएगा वो इसका. ओके, यूएसपी दिखाइएगा. यूएसपी में है जो हम लोग टेस्ट में ज्यादा काम किया. आदमी एक ऐसा किया हमने, जो आजू बाजू में लोग रहते हैं ना, वो 3-4 बार आके हमारे जो शोरूम है, हमारे जो दुकान है, उसमें आके पिए, हमारे जो कैफे है उसमें आके पिए. जो आजू बाजू में रहते हैं, जो आदमी पीते हैं ना, वो बार बार इसको याद रहे कि अरे यार ऐसा चाय हम कभी नहीं पिया, ऐसा चाय हम नहीं पिया. ऐसा टेस्ट हम लोग बरकरार रखते हैं. हमारा 2-3 सिग्नेचर टी भी है. और दूसरा 151 वेराइटीज मैंने कहा, वो हर तरह का, हर एज लोगों को हमने रखा है, 18 to 30, और बच्चे लोग को भी, और वो बबल टी के जैसे हम लोग बच्चे लोग को भी रखा है, और एज लोगों को भी रखा है. हेल्थी टीज है, और अराउंड कैटेगरी 14 to 15 कैटेगरी है. और ये जो यूएसपी है, यूएसपी इसमें हर सेगमेंट को हमने कैटर किया है, हर सेगमेंट को. और इसका प्रोडक्ट प्राइस रेंज है 25 to 400 तक. इसमें रॉयल्टी भी है. अगर जो भी इन्वेस्टर आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को एक रॉयल काइंड ऑफ टीज ओनली वी नीड, तो ऐसे एक प्लेस हम सपोर्ट करें. और वहां पे बड़े बड़े लोग जैसे फिल्म स्टार हो, बड़े लोग हो, मालदार हो, जो प्राइड फील करना चाहते हैं, वो लोग, उन लोग को भी अलग अलग रखेंगे. मतलब ये जरूरी नहीं है कि 151 एक ही दुकान में जमा करें. तो हम लोग जो फ्रेंचाइजी से उनसे भी बात करके, उनका जो जगह है, उनका कल्चर भी के बारे में भी सीख के हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. और साथ ही साथ जाएंगे हम, पहले विन बोलते हैं. विन आप जो फ्रेंचाइजी है उनका विन पहले रहता है, जो विन दूसरा बोलते हैं वो हमारा रहता है. और ये जो हमारा यूएसपी है, और सस्टेनेबल, हम लोग एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखा है कि ये है कि हर मौसम में ये चलता रहे. इट विल मूव, एंड इट विल मूव अनस्टॉप्ड इन एवरी सीजन. इसमें आइस टी भी हमने रखा. वो हमारा टी का कैटेगरी थोड़ा दिखाएंगे अर्चना मैडम? ओके, इसमें इंटरनेशनल टीज भी है, रॉयल टीज भी है, और 400 तक मैंने बताया. वो 1 किलो का दाम भी बहुत 4000 5000 रुपीज आता है रॉयल टी का. और तंदूर टी सी है, इसमें हमारा सिग्नेचर टी है.
और मैंने कई बार कई टीमों के थ्रू गौरव सर को ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि एक बार वो कम से कम चाय पी ले, ताकि उनका जो हमारे बारे में जो भी हो, जो भी थॉट हो, वो एकदम रेडिकल बदल जाए, रेडिकली। लेकिन बीच में ये लॉकडाउन भी आ गया और कोरोना की वजह से। Anyhow, the bubble teas for the children and 11 types of coffees, इसमें ग्रीन कॉफी भी आते हैं, वो बहुत कम नजर आते हैं। हर कैफे में आप जाइए और ग्रीन कॉफीज और ब्लैक कॉफीज, कोल्ड कॉफीज, इसमें कोल्ड और आइस्ड कॉफी, टीज एंड कॉफीज हमने ये इसलिए रखा है कि हर मौसम में, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी को अपना एक, देखो ये मौसम में ये महीने में थोड़ा कम है, ये महीने में थोड़ा ज्यादा है, ये ऐसा जो डायलॉग है वो ना हो जाए, वो ना आ जाए। और मिल्क आइस टी है, रॉयल मिल्क टीज है और हेल्थ टीज है, इसमें कई तरह का, ग्रीन टी भी हेल्थ टी है। ऐसा हमने कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज ऑफ टीज है और कॉफीज है। और ये जो हमारा सस्टेनेबल, देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, लेकिन सस्टेनेबल जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बहुत कम रहता है। वो कहीं भी किसी भी मौसम आ जाए, या तो कोरोना आ जाए या किसी आ जाए, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे ही चला जाता है। लेकिन सस्टेनेबल जो है वो हमने रखा है। इसका मॉडल में भी हमने थोड़ा सा तब्दीली लाई है कि आदमी अभी कोई जाके खाना, जाके पीना और बैठ के पीने का जो कल्चर है जो पहले का, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तब्दीली आई है। और अभी जो है, अभी आदमी पी के चले जाए और हमको पार्सल लाया और पार्सल आए, और लेकिन जो पार्सल आने को जो प्रिफर करेगा, लेकिन सोच के करेगा, सोच के करेगा। पहले हमने ऐसा किया था, कहीं भी पार्किंग मिल जाए कोई भी रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाने लगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा। जो कंपनी जिसका टेस्ट अच्छा हो और अफोर्डेबल हो, उसी कुछ सोच के चूज करेंगे, क्योंकि उनको डिलीवरी मिलता है, उसमें पार्किंग का मामला नहीं है। पहले पार्किंग का मामला था, इसलिए कोई भी रेस्टोरेंट सामने आ जाए वो हम लोग खाते थे। लेकिन हम जो भी ढूंढ के जाते हैं ना, उधर पार्किंग का बहुत ज्यादा होता है, पार्किंग ट्रैफिक ज्यादा होता है। लेकिन जो हमको बाहर अच्छा लगा, मतलब पार्किंग मिलता है, उधर जाके हम लोग खाते थे, पीते थे। लेकिन वो अभी नहीं रहा। अभी क्या है, अभी जो भी हो पार्सल में बुक करने लगे। और अभी भी हम लोग का जो सेल्स है 60-70% अभी भी बरकरार है। जो सेल्स वो ये है। फिर हमने सोचा कि उसके देने के बाद मास्टर फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू ही चलेंगे, उस हिसाब से हम लोग ऐसे जा रहा था। बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन को हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें वो भी 60-70% अभी चल रहा है, क्योंकि हम लोग एक पार्सल बॉक्स हमने बनवाया। वो 1 घंटे तक जो गर्म है, वो गर्मी बरकरार रहे 1 घंटे तक। So it will remain at least an hour. It will remain hot at least an hour after it is brewed up. So इसमें यह रहा। और जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू चाय और कॉफी का जो आता है, उसके अलावा स्नैक्स भी है हमारे कई तरह का। जो डोमेस्टिक रीजनल जो भी चलता है वो भी हम बना सकते। इंटरनेशनल स्नैक्स भी हम लोग रख रहे हैं। और इसमें चाय पाउडर भी हमने रिसेंटली चालू किया है, क्योंकि जो चाय पाउडर है, आदमी लोग बहुत इसका डिमांड आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इसलिए वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजी लेता है, तो जो भी फ्रेंचाइजी है वो कई तरह का रेवेन्यू मॉडल हो जाए, ताकि ये नहीं चलेगा तो वो चले, ये चलेगा तो वो चले। अभी हम लोग बेंगलुरु में ज्यादा उन लोग पाउडर में, लॉकडाउन में पाउडर में फोकस किया था। जो पीते हैं ना, उनको यही चाहिए। पहले तो हमारे पास आके पीता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद था। लेकिन वो हमारा जो पाउडर है वो लेते रहे। और मैंने जैसे बताया, आइस टी है और कोल्ड कॉफीज है। और हम ये देख रहे हैं कि मास्टर फ्रेंचाइजी हो जाए, अगर यूनिट फ्रेंचाइजी भी हो जाएगा तो मुश्किल नहीं, लेकिन मास्टर फ्रेंचाइजी जब हो जाए, उनके साथ काम करने का एक मजा अलग ही है। और मॉडल हमने ये रखा है, अभी जो चलेगा जो मॉडल है वो 2 मॉडल हमने रखा है। एक तो
10 लाख का मॉडल है इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजीज। उसका पेबैक पीरियड जो है, द पेबैक पीरियड वी हैव ड्राफ्टेड दैट इज 1.4 मंथ्स, मैक्सिमम 1.8 मंथ्स, 1.4 to 1.8 मंथ्स। जो एवरेज जो है उसका जो ROI है वो 5 साल का है, एग्रीमेंट भी 5 साल रहेगा। जो उसमें वो एक मॉडल है, ये मॉडल बहुत चलने वाला है। ये मॉडल के लिए अभी केरला में हम लोग पहले फोकस नहीं किया था, मैं केरला से हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सा हिंदी अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मुझे मालूम है वो बता रहा हूँ। केरला में अभी बहुत हमें डिमांड आ रहा है। पहले हम लोग फोकस ही नहीं किया था, इवन दो वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन केरला, वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन केरला सिंस वी हैव नेवर अंडरस्टूड दैट द केरला इज ए नीश मार्केट। तो वी हैव जस्ट मूव टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड देयर। तो एक दूसरा एक मॉडल है वो 23 लाख का है, वो 400 to 800 स्क्वायर फीट है। उसका भी पे बैक पीरियड 2 साल तक है, 1.8 to उसमें 1.89 मंथ्स टू 2 इयर्स। सो उसका भी एग्रीमेंट रहेगा 5 इयर्स, और उसमें वो इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फी है। वो इसमें ROI भी रहेगा 5 साल का। ये हमारा रहा है, लेकिन इसमें देखो सर्विस लोग बहुत देते हैं, पीपल आर रेंडरिंग द सर्विस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट द सर्विस व्हिच वी हैव इट इज क्लब्ड एंड कंबाइंड विद द क्रिएटिविटी वी हैव। जो क्रिएटिविटी है वो हमारे पास इस मामले में, जो ब्लेंडिंग बनाने में इसको, वो हमारा सीक्रेट है। वो जो सर्विस ओरिएंटेड है हम मानते हैं, लेकिन सर्विस के साथ साथ क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व्ड है। ये हमारा जो इन यूनिकनेस है, ये फिर हम कंसिस्टेंटली हम लोग इसको इनोवेट करते रहे। और क्यों इसको चूज करना है, ये एक सवाल है, क्यों ये इसको चूज करना है। वो मैडम थोड़ा दिखाएंगे, अर्चना मैडम। हेलो, ओके। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड टी एंड बेवरेज बाय नेचुरल मिल्क है, जो नेचुरल मिल्क जो बनता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है। तो आदमी का जो हेल्थ को हम देख के ये किया है। इसमें मिलावट, adulteration, there won't be anything as such, and the people will blame for that. And highly profitable brand है। और मैंने जैसे कहा कि this is a service oriented but creativity is involved, and ये 4 साल के अंदर ग्लोबल हिट होने वाला एक अनोखा ब्रांड रहेगा। और हम हमेशा चाहते हैं कि जो फ्रेंचाइजी है उनका सक्सेस रहे, और उनकी सक्सेस का तोड़ की वजह से हमने अभी तक डिले किया था। इसका उनका सक्सेस के तोड़ में तोड़ ने उनका जो सक्सेस का, उनकी जो कामयाबी का जो सोच है ना, उसने ये जो सोच ने हमको फ्रेंचाइजी इंडिया तक पहुंचाया था। नहीं तो फ्रेंचाइजी इंडिया के पास हम कभी भी नहीं आता। अगर खाली हमारा देखते हैं, वो हमारे जो प्रॉफिट में हम लालच रहे, हम कभी नहीं आता। क्योंकि ये जो जब कस्टमर जो भी फ्रेंचाइजी है, उनका जो कामयाबी होगी, उनको सही मॉडल, सही तरह और सही मेंडरशिप चाहिए। हमने ये सोचा, इसलिए उस सोच ने हमको वहां तक पहुंचा दिया। और हर मौसम में ये सुहाना है, हर मौसम में ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास आइस टी है और कोल्ड कॉफी है, हर चीज है। वी हैव वैराइटीज ऑफ टीज व्हिच मूव्स इन ईच एंड एवरी मौसम, इन ईच एंड एवरी मंथ, एंड that is the thing which I want to conclude. Now I think question and answer session, I think, is it enough? Anything else to be added? You can have your own say on it. Thank you, Tanvirji. Thank you very much. It was very, very helpful. It reflects on your passion about what you wanted to create. And I also feel that India, a lot of our own homegrown recipes have big potential to take it to the world. And rather than just bringing a global opportunity in India, you rightly said, tea is a very big opportunity. That's why Starbucks also bought a company called Teavana. Teavana was a tea company, and Starbucks actually bought that company because they found that a lot of changes would happen globally, and tea would become a big preference. And just for our audience, I'm also sharing with you, 5 years back, Starbucks logo used to have Starbucks and coffees downstairs written. So they removed the coffees.
So they don't even want to known for coffees anymore. While I'm both, but I'm nothing against that. Coffee also would go in their own sector. India also has a love for coffee, but we also have a very large capabilities on the way we cook, make our own teas. So, for all our audience, I think you gave the full presentation in Hindi, because which reaches much more larger audience. So we thank you for that. And but I also, some people have written that they wanted to understand. I'll take maybe 2 minutes to give you a summary on the business model. So the business model is a small tea, multiple tea, 151 varieties of different tea, and each tea has a proprietary recipe. Why I say this proprietary recipe? Because all successful food businesses globally have been successfully on only one parameter. And that parameter has always been what proprietary product they bring to the business. And great companies were always built not by the aesthetics of the store or the logo or any other thing. It was always built on the proprietary product, which created subscriber value, where people would go extra mile to have that thing from that particular place. We all remember growing up, we wanted this snack from this shop only, we wanted this beverage from this place, and that thing. We went for some meal at a certain places. Like I go to a place in Bangalore, there are 2-3 places where I would get only the proprietary idli dosa or something like that. So people have, or in Hyderabad, if you go to a Paradise, you have a proprietary recipe for a biryani or something like that. So why we chose Tanveerji's brand, and we felt why it is so important. And my team, when they went there and they tried the product, especially their tandoori tea, and they felt that this was a proprietary product. This had absolutely uniqueness in taste, and it creates a subscriber value. Once you start coming to their tea shop, then you start coming regularly. Another thing which is we are excited at Franchise India is this whole opportunity of convenience. Tea is something which is a religion. You're a smoker. You will go to a tea shop. If you are in an office also, you want a break, you will go to it. So it is a very convenient model, and we like convenience food businesses. Easy to start, very simple recipes. All the supply chain comes from them, and then you are able to start this in any captive audience. And now with the rentals going down, you can really start small outlet in 10 odd lakh rupees, which has all the fit outs and everything else. And if you want to have a little, especially in smaller cities, say you are in Belgaum, or you are in Hubli, or you are in Dharwad, or any other places. I mean, I'm talking about North Karnataka, but I'm saying all over India, this opportunity is available, where people want a little more cafe also, a little bit sitting outside, where you can have a cafe experience where people can come with families, friends, and come and have a little bit chit chat. So that also is a possibility. तनवीर जी, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि जो ये रेसिपी है, स्पेशली जो तंदूर वाली, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को. एंड सेकंड, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करते हैं हम इन आउटलेट्स पे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि उस पर्टिकुलर रेसिपी के अंदर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और कि कंसिस्टेंट टेस्ट जो है वो हर जगह मिल सके. ओवर टू यू. ये जो रेसिपी जो 2-3 स्पेशली जो रेसिपी हमारा जो सिग्नेचर टीज में जो रेसिपी आता है, वो हमने कई रिसर्च के बाद हमने फाइंड किया था. वो हमारा जो फैक्ट्री है अब वो केरला में है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है. वो हमारा जो पार्टनर्स है वो मतलब गिरीश, वो इसमें आया है. उनको जो हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा तकलीफ है, वो बोलते हैं, लेकिन ठीक है. वो जो रेसिपी है हमने बनाया है वो एक स्टेबल सिस्टम हमने रखा है, लेकिन ये वो रेसिपी का कंसिस्टेंसी का क्वालिटी कंसिस्टेंट कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हम 2-3 चीजें, इतना ग्राम होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए. एक एसओपी सिस्टम हमने इसमें लगाया है प्रोडक्ट सिस्टम में. प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है, जो भी ब्लेंडिंग प्रोड्यूस ये है, उसमें हमने एक एसओपी लगा कर रखा है ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो.
उसमें और कुछ क्वेश्चन था इसमें? हाँ, एक मतलब रेसिपी था, ट्रेनिंग कितने करते हैं? अगर मैं फ्रेंचाइज लेता हूँ तो क्या मुझे ट्रेनिंग कैसे, कितनी देर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है? वो तुम्हें 15 दिन, इट इज मोर देन इनफ। 15 दिन, 15 दिन बहुत काफी है, क्योंकि हर चीज हमारे पास है और उनको कैसे ब्रू करना है, कैसे ये करना है, वो खाली दिखाना है। और दूसरा उनको जो कल्चर है, जो कल्चर वो भी उनको, जो कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, वो भी उनको हम ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि वो हर चीज प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज अ प्रोडक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट पीपल लाइक इट। एम आई करेक्ट? सो उनको उस तरह से भी ट्रेनिंग होता है कि कैसे वो अप्रोच करना है, कैसे उनको समझाना है। और जो रेगुलर आते हैं, क्योंकि हमारा जो रहा है अभी तक का जो ग्रोथ का रीजन रहा है, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। जो भी पीते, अभी यूपी से आदमी लोग आते हैं हमारे, दो तीन लोग हैं, 2-3 कस्टमर है जो यूपी से, कोई भी उनका आता है ना तो बोलते हैं कि उधर जाना है। क्योंकि अभी 10 रेस्टोरेंट का नाम अभी आया है जो जरूर द वर्थ विजिटिंग नहीं है, मस्ट विजिट बोल के बेंगलुरु में, उसमें हमारा नाम भी आ गया है। ये बहुत खुशखबरी है कि जो भी आते हैं उधर जाके पीते हैं, और उनको वो जो रेसिपी भी हम लोग बरकरार रखते हैं, और उनका जो बिहेवियरल जो भी ट्रेनिंग है वो भी हम लोग फोकस कर देते हैं। Congratulations, you are among the places you must to visit before you leave the city. So that's very big achievement. And this happens only when you have a proprietary product. And they have actually worked very hard. As I said, 4,000 liters of trial for making the finest tea. So especially India likes this very unique flavor, which gives a refreshing taste to the tea. So this is so I look forward for personally coming and tasting your tea. My team has been talking about. You are most welcome, sir. It is a great. So I'd like to invite Sonia. Sonia, your comments and questions, please. Oh, thank you so much, Tanvirji. We love your passion, and I see those comments also coming in our Q&A. Overall, I would say it's a very good model. It is idiot proof. Doesn't require chefs to do that. It is convenience led. I had few questions which perhaps I would like to take it up. I'm not too sure if we have made a mention of that in our presentation. I have one question which is coming up is on the FOCO model. Is that something that we're looking at this point in time? Because I think I've got 4 odd people who want to understand how this model works. And if this is available, are we looking at outside Bangalore or not? ओके, अभी हम लोग फ्रेंचाइजी, जो मास्टर फ्रेंचाइजी हम देख रहे हैं आउटसाइड बेंगलुरु है। और फोको मॉडल में हम लोग ये जो अगर मास्टर फ्रेंचाइजी अगर लेते हैं तो हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। अभी दुबई से लोग आए, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला, अभी एग्रीमेंट भी उसने जल्दबाजी में भेज दिया, लेकिन मैंने रोका क्योंकि हम ये पहले यहाँ पे फोकस करें। क्योंकि वो आ गया, वो उडुपी रेस्टोरेंट के थ्रू आए थे, तो उन लोग पूरा उनका जो रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट उनके पास है उधर, उन्होंने बोला एक पार्ट आपको देंगे, क्योंकि इतना टेस्टी टी कहीं भी हमने टेस्ट नहीं किया है। तो हमने रोक के रखा है। अब बीच में लॉकडाउन भी आ गया, अच्छा हो गया। तो हम लोग अभी देख रहे हैं इसके बाहर, बेंगलुरु के बाहर हम लोग देख रहे हैं, और उनके साथ मिलके हम काम करें। ये नहीं है कि हम लोग दे दिया मास्टर फ्रेंचाइजी, जो पैसा मिला अच्छा हो गया, नहीं, वो उनके साथ मिलके हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फ्रेंचाइजी इंडिया भी है, और उनके साथ भी हम लोग काम करेंगे और उनको जिताने की कोशिश में उस वक्त तक, जब तक वो जीतने की कामयाबी का जो किनारा है वहां तक नहीं पहुंचते, हम फिर दूसरा लेने से भी हम लोग हेसिटेट करेंगे, और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि वो कामयाब रहे। जी, एक मैं क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहती हूँ, सक्सेस कोई F&B आउटलेट है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर और प्राइसिंग के ऊपर, और इन तीनों चीजों को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आपकी 6 लोकेशंस है व्हिच यू आर रनिंग इन बैंगलोर। People want to understand what kind of throughput or sales we are doing on a monthly basis between 2 formats. एक आपका छोटा format है which requires 75 square feet of space, and the other is a bigger format which is 400 square feet of space. How many of these 2 outlets you're running, and what kind of sales
are we getting from these two outlets is one question. और इसी के साथ अगर आप मुझे फूड के बारे में बता सके, बिकॉज फूड और चाय कॉम्प्लीमेंट करती हैं. अगर आप you understand that very well, today a lot of brands which are running especially in the tea and the coffee space, they complement the offering along with food, which is also a major component. And I saw in the video also जहाँ पे बहुत सारी food offerings दिख रही थी मेरे को. तो अगर आप बता सकते हैं कि कौन सी लोकेशंस पे क्या सेल्स है और फूड और बेवरेजेस में क्या कंपोनेंट आपका रहता है परसेंटेज सेल्स का. ओके इसमें अभी हमारे पास जो मॉडल है वो कियोस्क मॉडल है. कियोस्क जो हमने दिखाया बड़ा मॉडल अभी तक, अभी टू बी फ्रैंक विथ यू, वी आर एट टू स्टार्ट दैट मॉडल. ओके, because we have already were having discussion over this in there in with Bangalore franchisee master franchisee, and they were at to spot the place where we can start it. Anyhow, the kiosk is running very fast, and kiosk का मैं बताऊं आपको, जो भी अभी को लॉकडाउन से पहले जो हुआ था, जो अभी 10 लाख का जो खर्चा करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग खुद कर लेते हैं, उनको वो सब फ्रेंचाइजी दे रहे हैं. फिर सब फ्रेंचाइजी देते तो हम लोग को कम से कम 4 to 5.35 4 लाख to 5.35 का सेल होता था. और उसमें पकड़ लो कि एक साल का 9 to 1 साल के अंदर उसका पे बैक पीरियड होता है. लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा इसलिए कि फिर अगर थोड़ा जल्दी मिल गया तो अच्छा है, अगर फिर वो जो हम बोलते हैं डेट बोलते हैं उसके बाद मिल जाएगा तो जितना भी अच्छा टाइम बोले उनको अच्छा नहीं लगेगा और डिसअपॉइंट रहेगा. इसलिए हमने ये रखा है अभी 4 to 5.35 लाख का तक का वो क्या नाम है सेल्स रहा है लॉकडाउन से पहले. तो 9 to 12 months का पे बैक पीरियड उसमें आता है. Okay, so I'll just repeat for a lot of people who might have not understood. So there's a sale of about an average of 4 odd lakhs, which you were getting from the outlets before the lockdown, because we had this question, what kind of sales the outlet was doing. Tanviji, this outlet you're talking about the smaller format or the bigger format? Yeah, bigger format. As I have just told you, we have not started yet. To be frank with you, I don't want to, have yeah. And also, if I want to take a suggestion, because considering the times of today, smaller formats, low capex is something which will move. Yes. So, do you have a suggestion to the investors? What format you want to look at this point in time? While we talked about the two, एक छोटा format था, एक बड़ा था, इन दोनों में से कौन सा आप इस टाइम पे advise करेंगे investors को? बहुत अच्छा सवाल है. I really appreciate you for that question. ये अभी जो लॉकडाउन से पहले जो दुनिया थी वो बिल्कुल बदल गई है. और लॉकडाउन से पहले अगर वो पहले का जो सोच के साथ अगर लॉकडाउन के बाद में हम चलते हैं तो हम बिल्कुल कामयाब नहीं रहेंगे और नाकाम रहेंगे. इसलिए मैं I prefer on the basis on the by virtue of the customer success, I really prefer the kiosk model में चले ताकि उनका प्रॉफिट भी पे बैक पीरियड भी जल्दी हो जाए और आदमी लोग आके लेके चले जाए, क्योंकि डाइनिंग अभी चलना बहुत मुश्किल है 6-7 महीने तक. तो कियोस्क मॉडल है वो अलग मॉडल है, वो जल्दी मतलब very frequently you can have more and more if you are having the master franchisees. And I will tell you one more thing, sir. I'm so sorry, Mr. Gaurav, sir, that this Udupi restaurant have just signed with our people, the Bangalore franchisees, that we will have, they have around 17 to 18 big restaurant. So they have enough space in front of their restaurant. They have asked us, they have asked our master franchisee to have our kiosk in every shop, because एक शॉप हमने डाला है उसमें फायदा भी देखा उन्होंने और आदमी लोग का ट्रैफिक भी देखा. मॉडल जो है इधर चाय और स्नैक्स खाने आते हैं, फिर बाद में उनका जो भी क्या नाम है जो भी मसाला डोसा हो उनका भी मनी मेकिंग मॉडल उसमें आ जाता है. इसलिए उन्होंने बोला 17 में आप लोग चालू करो, बीच में वो लॉकडाउन आ गया कोरोना की वजह से. ओके,
Right, and we can also this model is based on density of people, you know, जहाँ पे ज्यादा लोग आ सकते हैं, ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कन्वीनियंट, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन हब्स हो गए या आपके नॉलेज पार्क्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हैं। तो जो आपके 6 आउटलेट्स हैं, ये किन लोकेशंस पे आप खुले हुए हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जो आप एडवाइस करेंगे लोगों को इस टाइम पे खोलने के लिए? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो ट्रैफिक रहता है, उनको कार से निकलने से भी मुश्किल है, तो भी हम लोग उनको कैटर कर सकते हैं, मतलब हमारे इधर आने की जरूरत नहीं है। और जो भी एरिया है 6-7 कहीं भी ऑफिस है, लेकिन उनका एडवर्टाइजमेंट वो सब होना चाहिए, लेकिन जो भी एरिया है उधर तक हम लोग पहुंच जा सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा इसका गर्मी जो भी है वो बरकरार रहेगी। तो ऑफिस का जो है वो बहुत अच्छा है, और स्कूल का जो एरिया हो वो भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे लोग इतना स्कूल का लोग आते जाते हैं, और हमारे जो भी शॉप है वो ट्रैफिक के अंदर, एकदम ट्रैफिक के अंदर, एकदम फिर भी आदमी लोग जो चाय दे दो वो दे दो। अगर ऑफिस थोड़ा सा दूर है तो भी हमने अभी इन्वेंट किया है, हमने अभी बनवाया है कि एक घंटे तक उसका जो गर्मी वो बरकरार रहे। जी, आपका डिलीवरी और आउटलेट कंजम्पशन में क्या है proportion? How much sales happens at the outlet and how much of this is delivery? Are you also registered with Swiggy or any other companies like Zomato? And if yes, what kind of sales you do through them? Yes, अभी हम लोग खुद कर रहे हैं। स्विगी के साथ हमने लॉकडाउन से पहले बात की थी, और एग्रीमेंट भी हम लोग कैसे करेंगे 30% उसको फिर कम करा के मास्टर फ्रेंचाइजी से लोग बात किया था। फौरन ये लॉकडाउन के बाद फौरन वो करने वाला है। वो जो ये लॉकडाउन से पहले हमारा जो रेशियो रहा है वो ये है कि 65% डाइनिंग इन, मतलब हमारे पास आके लोग पीते थे, और जो 35 हमारा जो पार्सल जाते थे, अभी 70% हमारा पार्सल ही जा रहे हैं, क्योंकि जो पीता है ना वो कभी भूलता नहीं है। Absolutely, and I think this would be a very big phenomenon for big cities. A lot of delivery based focus would come. Parcels और जो आपका कैन होता है उसकी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन छोटे सिटीज में मुझे लगता है अभी भी एक छोटे कैफेज की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें देखना चाहिए इंडिया बहुत बड़ा है, और इंडिया हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम a market. Some markets are absolutely normal. There is no difference. I mean, look at I have friends in Goa, I have friends in other parts of India, where smaller cities, there everything is open. While we all have to be conscious about social distancing and everything else, but in small cities, I feel that there is an opportunity of doing a cafe. In bigger cities like Bangalore and other places, especially shop-in-shop cafes, what you're doing like Udupi के बाहर आप कियोस्क लगा सकते हैं, traffic is moving and people can just pick up, and you can maintain a little bit of hygiene on that. So that I think would come. I think tea concept, why we are also encouraging and bringing on our forum, because tea concept will be fastest to come in F&B back, because ये एक तरह की necessity है. It's a necessity for people to have a beverage. और वो लोग with all the hygiene you can maintain, and you can transfer that to entire thing. People might not consume too much of food outside or order for food, but beverage, I think tea concepts would do very well. Thank you, sir. Sonia, your questions? तन्वी जी, 2-3 क्वेश्चंस मैं और लेना चाहती हूँ, जिसमें एक तो आपका जो प्राइसिंग है, जो क्वेश्चन आया था, जैसे अगर हम टीयर 2 के लिए देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स भी हैं, टीयर 2 एंड टीयर 3 इज आल्सो वेरी बिग डिमांड, एंड लास्ट 2-3 years वी हैव सीन लॉट ऑफ टी ब्रांड्स आल्सो ओपनिंग इन दीज लोकेशंस। तो जो आपका प्राइसिंग है, जो आपने बताया 25 रुपीज से 400 फॉर अ टीयर 2, टीयर 3 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है, विल यू बी डिफरेंशिएटिंग योर प्राइस पॉइंट्स फॉर अ टीयर 2 और टीयर 3? एंड सेकंड, आपका जो एवरेज टिकट प्राइस है एक कंज्यूमर से, वो कितना होता है? ये ठीक। हाँ, इसमें हमने अभी जो लॉकडाउन से बिल्कुल पहले हमने ये किया था कि 15 से हमने चालू किया, 15, क्योंकि आदमी उसके वो 15 थोड़ा सा वो भी ब्लेंड अलग हमने बनाया, वो ब्लेंड भी हिट हुआ, क्योंकि जो तंदूरी टी हम बोलते हैं ना, जैसे कि पुणे में है, बॉम्बे में है, हम लोग वो सब पी के ब्लेंड बनाया था वो। लेकिन उधर तंदूरी टी का हम लोग जो सिग्नेचर टी बोलते हैं, वो उसका 25 से चालू होता है,
लेकिन जो हमने अभी लॉकडाउन से बिल्कुल पहले हमने जो उडुपी रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वो कियोस्क चालू किया था, वो 15 रुपीस का ये किया था। उसमें बहुत कई तरह का डिमांड, ट्रैफिक बहुत आ जाता है, ट्रैफिक क्योंकि कोई भी आके पीता है ना, 15 क्या है, 15 कुछ नहीं है। लेकिन हम उनके लिए एक अलग ब्लेंड रखा, अलग ब्लेंडिंग रखा। पहला हम लोग उसके लिए भी हमने रिसर्च करके हम बनाया था। इसलिए जो भी मॉडल, जो भी सिटीज, जो भी हमारा जो मास्टर फ्रेंचाइजी है, उनका जो थॉट है, अगर unless and until it is damaging, मतलब हमारे ब्रांड को डैमेज नहीं करते हैं, तब तक हम उनके साथ मिलते रहेंगे। और उनको जो भी इनोवेशन है, कोई भी ब्लेंडिंग ऐसा चाहिए, वो पूरा हम लोग सिस्टम बना कर रखा है। ये हमने कामयाब रहा है। और अभी 15 से, अभी वो उधर 15 से फिर जो भी बबल टीज है बच्चे लोग आके पीते हैं, वो भी रखा है हमने। तो जी एक क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं, हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट की बात की, इसका थोड़ा सा ब्रेकअप आप समझाएंगे, क्या ब्रेकअप है और एक आउटलेट का टिपिकली क्या एक्सपेंस होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एंड नेट मार्जिन्स या एब्सोल्यूट मार्जिन्स आफ्टर टेकिंग आउट all the expenses, what should these be, and average rental for a small format like this, how much should that be? अभी जो सिटी में हो उनका जो रेंट रहता है कम से कम 50 to 60,000 रहता है। मतलब ये अभी लॉकडाउन के बाद, इसके बाद अगर कम हो जाएगा तो अच्छी बात है। और क्या सवाल था, मैं भूल गया। एक अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ब्रेकअप क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट का? और टोटल ब्रेकअप ये है 22.5 हमारा फ्रेंचाइजी फी रहता है। बाकी हमारा जो इंटीरियर का होता है और हमारा मिशनरी का होता है, और जो भी उधर मिशनरी का हो उधर का होता है। फिर 2 महीने का हम लोग सैलरी का भी ये रखता है, 2 महीने का। और इसमें ये मिला वर्किंग के कैपिटल कितना होगा तन्वी जी? आपने बोला 2 महीने का, आपने सैलरी का भी 10 लाख में इंक्लूड किया हुआ है, तो वो कितना कंपोनेंट होगा? और इक्विपमेंट टिपिकली क्या एक्सपेंस होगा इक्विपमेंट के ऊपर? इक्विपमेंट का ऊपर हमारा एक्सपेंस होगा कम से कम 4.35 से 5.5 तक हमारे इक्विपमेंट का होगा। ठीक है, ऊपर नीचे होगा वो का। और इनका जो हमारा फ्रेंचाइजी फी भी हो गया, फिर एक 2 लाख 2.5 लाख तक का हमारा वर्किंग कैपिटल भी होगा। ओके, so about 7.5 plus 2.5, another 2.5 is for the working capital, which is retained by the franchisee, which is not given to you. तो ये 2.5 lakhs वो अपने पास रिटेन करते हैं। हाँ, ये जो है ना वो 2 से 2.5 लाख तक होगा, क्योंकि वो जरूर होना चाहिए ताकि उसका रेंट भी होगा, ये भी होगा। उस हिसाब से हमने प्लान किया है। ठीक है, वो ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ा सा होगा, बस उतना ही। ठीक है। एक आई हैव अ क्वेश्चन, डू यू आल्सो ऑफर कोल्ड बेवरेजेस लाइक जूसेस एंड शेक्स? हाँ, कोल्ड बेवरेज है, ये आइस्ड टी है और कोल्ड कॉफी है। इसमें भी कई वैरायटी का है, हर चीज को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना खुद का सिग्नेचर बनाया है इसमें। और ये जो जूसेस है, जूसेस हमने अगर जगह है तो हम लोग ये हमने कोल्ड कॉफी के भी बताया ना, कोल्ड कॉफी बहुत बढ़िया 1-2 कोल्ड कॉफी हमारे पास है। उसमें एक सेकंड है, ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। और इसमें जूस में हमने ये किया है, अगर जगह है तो हम बना के ही देंगे, लेकिन बना के देना बहुत तकलीफ होगी। लेकिन हम लोग बोतल में उधर रखेंगे, बोतल में फ्रेश जूस बोतल में रखें, ताकि आदमी आके लेके जाए। फिर एक जूस का दुकान होगा, वो बहुत मुश्किल है। ओके जी, एक जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी, जैसे कॉस्ट ऑफ फूड या कॉस्ट ऑफ टी, अगर एक आपका 25 रुपए का कप है तो क्या रहती है उसमें कॉस्ट? क्या बोला? बेवरेज कॉस्ट क्या है आपकी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेवरेज? मतलब फूड कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें अगर हम लोग 25 बोलते हैं ना, हमारा कॉस्ट जो आता है 6 to 8 रुपीस पकड़ लीजिए आप, 6 to 8। और जो 15 का हमने लेकिन हम लोग अभी जो हम लोग कैलकुलेट किया है वो 6 है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा बढ़ा के बोलता हूँ। ठीक है, और जो क्या नाम है, जो 15 के हमने बोला ना, उसका आता है हमारा 3 मैक्सिमम 4 उसका कॉस्ट आता है।
और मैं आपने पूछा ना इसमें कोल्ड में क्या क्या है, उसमें क्या है, कोल्ड कॉफीज है, आइस टी है और आइस्ड मिल्क टी है और बेबी चिन्नो बोल के है और बबल शेक है और इस तरह का ठंडी मतलब कोल्ड चीज हमारे पास रहती है। Sure. Very, very helpful. And I think we are running close to closing time. So, तनवीर जी, आपका आखिरी व्यू पॉइंट, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे फोरम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को? आप भी एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, यू हैव वर्कड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एंड क्या आज आप स्पेशली कोविड की सिचुएशन देखते हुए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को मोटिवेट रखें, और अगर वो आपको पार्टनर करना चाहते हैं, क्योंकि आप जितनी भी बात कर रहे थे आपका पैशन और ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट कर रही थी, एंड क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? एंड देन आई विल टेक इट फ्रॉम सोनिया आल्सो। ओके, इसमें एक मैं भूल गया था कि हमारे कैपुचिनो का एक ही टेस्ट रहता है हर जगह पे, मतलब रेयरली बहुत। हमारे एक कैपुचिनो है, ये अलग रेसिपी हमने बनाया है, वो मैंने भूल गया। ये जो सवाल गौरव सर ने पूछा है, एक सवाल एक्चुअली मैं उनको पूछना चाहिए था, उनको पूछना चाहता था। एनी हाउ, ये जो लॉकडाउन से पहले जो दुनिया रही है वो बिल्कुल लॉकडाउन के बाद बदल गया है, और इस वजह से फ्रेंचाइजी इंडिया को मैं रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि उन्होंने ये जो मॉडल कियोस्क मॉडल हमको ये इस फॉर्मेट में बना के रखा है। तो फ्रेंचाइजी इंडिया के थ्रू जब हम सफर शुरू किया, उस दिन से हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमको भी मालूम नहीं था कि ये हमारे पास इतना अनोखी चीज है। I was not aware of it, okay, but when I started tie up with Franchisee India, I have come to know that this has a tremendous possibility for the growth and transformation. So ये जो इसके बाद जो है हमारा, मैं बिल्कुल प्रिफर करता हूँ हमारे जो ये कियोस्क मॉडल है। कियोस्क मॉडल अभी मेरी बीवी कल बता रही थी, आजकल का कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जो पैसा है पकड़ कर रखते हैं, ताकि आगे क्या होगा किसी को कुछ खबर नहीं है, आगे क्या होगा किसी को खबर नहीं है। लेकिन आई एम इनवाइटिंग यू टू सच ए ब्रांड वेयर यू कैन हैव आवर फ्रेंडशिप विथ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल विथ क्रिएटिविटी इन्वॉल्वमेंट। तो ये अभी एक बताना चाहता हूँ, अभी बेंगलुरु का जो मॉडल है, मैं अभी मेरा जो बेंगलुरु देखते हैं उनसे मैं बात कर रहा था। अभी जो हमारा जो पेबैक पीरियड है वो बेंगलुरु में अभी एक शॉप का 6 महीने के अंदर मिला है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम आवर एमडी, 6 महीने के अंदर मिला है। तो कि आप हमारे साथ आ जाइए, और जो भी हमने बोला है हमारा दिल से बोला है, ये नहीं है कि जो भी हो पढ़ के कहीं से खींच के लेके और इधर से पढ़ के वो बताने की जरूरत नहीं। ये जो है हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने आपके ऊपर आपके सामने मैंने पेश किया है। और ये आफ्टर लॉकडाउन दिस इज वन ऑफ द गोल्डन चांस, बिकॉज इट विल नेवर फेड अवे ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी सीजन, ड्यू टू एनी रीजन। थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, and we really see that coming from you. You are an honest entrepreneur, and your honesty and your dedication and your focus. Some entrepreneurs are chasers. You know, they go out and work hard for their dreams. You are one of them, and everybody else can also see that same feeling. And we at Franchise India are very proud to work with entrepreneurs like you, who are creative, who also want to share their success with others. So over to you, Sonia, for your last remarks. Thank you so much, Tanveer ji, for putting this together. And I also want to reiterate, you have really answered and gave this presentation very transparently. You talked about the real figures जो आपके outlet पे हैं, क्या आप rent देते हैं, and the thing on the consistency is very important. Consistency of product is what really brings efficiency and also brings a lot of repeat business, and that makes the brand more scalable. जिस heights पे आप जाना चाहते हैं. So thank you so much, and Tanveer ji, wish you all the best in this journey of making this brand one of the biggest in the country. I was reading your brochure, and I was reading the vision you have for 2025. So wish you all the best for that. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Thanks for every participant here. Now my to-do list to come and have a tea with you.
Oh, you are most welcome. And I like Warmly welcome. You are goldenly welcome. Thank you. Okay. Archana, over to you for thanks. No. Yeah. So thank you so much, friends and family who have joined us from Pan India and where what Tanveer has shared with you. Tanveer ji, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे. Thank you so much for taking out time and giving us this beautiful presentation और जो आपने अपने ब्रांड के बारे में बताया. जैसे आपने हम सबको इनवाइट किया है, गौरव सर, सोनिया मैम और पूरी फ्रेंचाइज इंडिया टीम डेफिनेटली चाहेगी कि हम आके आपकी चाय और कॉफी ट्राई करें. बेस्ट विशेस फॉर यू. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स आवर पैनलिस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी. Attendees who have joined us, there is a LinkedIn ID. You can join and you can approach Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective IDs. You can share your all the queries, all the issues with us. You can also share suggestion with us so that Franchise India team as a group will work on your suggestion to improve our performance and everything. You can also, Dheeraj, if we can go to the, yeah, so tomorrow we welcome you for another great brand, Canada Wale. It's a leading consulting who helps for all Canadian immigration and overseas education. They're already present in many locations. We have Anirudh who is come, who is a director of this particular brand, interacting with each one of you and presenting his great idea with you, जैसे आज तनवीर जी ने करा. Tomorrow again, great brand for each one of you. As mentioned by Gaurav sir in your chat tool, you can write to him at gm@gauravmaria.com for any suggestion, for any help. We at Franchise India is always happy to help with all the brand solutions. Thank you so much. Please do take care of your health and stay safe.